Now next is expression for different types of molecular velocity, that is most probable velocity, average velocity, and root mean square velocity. We have used again the direct result for most probable velocity, average velocity, and root mean square velocity. For average velocity it was 2RT by m under root. For average velocity it was 8RT by pi m under root, and for root mean square velocity it was 3RT by m under root. Now using Maxwell distribution equation for velocities, we will derive these relations. So first we start with most probable velocity. The expression for most probable velocity is given as, we have already discussed, that alpha is equal to 2RT by m under root. So for the derivation, almost ये तीनों के तीनों जो different types of molecular velocity we will be discussing, लगभग सबका डेरिवेशन एक जैसा सा ही है. उनमें सिर्फ इनकी जो डेफिनेशन है, डिफरेंट डेफिनेशंस है, मोलिकुलर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी. तो उनकी डेफिनेशन का जो बेसिक लॉजिक है, बेसिक मैथमेटिक्स उसके पीछे है, वो हम यूज करेंगे और एक्सप्रेशंस बदलते चले जाएंगे. सो वी स्टार्ट विद द इक्वेशन फॉर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी. अगेन 1/n into dnc by dc. Direct we are using this result for pi m upon 2 pi rt raised to power 3 by 2 into e raised to power minus mc square by 2 rt into c square. एक बार मैं ये टर्म फिर से रिवाइज कर देता हूँ. Here n is the total number of molecules. This term dnc by dc, this is the fraction of molecules having velocity between c and c plus dc. M is molecular mass of the gas, R is gas constant, T is temperature in Kelvin, and C is the velocity of gas molecules. So now our aim is to get the condition for the maximum of the distribution curve. जो हमने प्लॉट किया था fraction of molecules along y-axis and the molecular velocity along x-axis. In that plot like this, we get that maxima, and corresponding to that maxima, the velocity which was obtained, we said that velocity is most probable velocity. So we have to find the condition for maximum of the distribution curve. The condition for maximum and minimum in the distribution curve are obtained by differentiating right hand side of this equation first with respect to c, and equating the results to 0. Therefore, differentiating, leaving this left hand side, differentiating this equation first, right hand side of this equation first, just we write d by dc, differentiating this with respect to c. Baki as such, 4 pi m upon 2 pi rt raised to power 3 by 2 into e raised to power minus mc square by 2 rt into c square, and equating this equal to 0 to get the values of maxima and minima. अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, remember here 4 pi into m upon 2 pi rt, all these are constant. So we will just keep it as such, 4 pi m upon 2 pi rt raised to power 3 by 2. We have to differentiate only this portion, d by dc of e raised to power minus mc square by 2 rt into c square is equal to 0, or d by dc of e raised to power minus mc square by 2 rt into c square is equal to 0. Here remember, say this is term A and this is term B. A into B is equal to 0. That is possible only when either A is equal to 0 or B is equal to 0. Now we have put that this B, that means d by dc into e raised to power minus mc square by 2 rt into c square, ये यहाँ माइनस कर लेना, e raised to power minus mc square माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस कर लेना, आगे तो ठीक है. इसको हमने 0 के बराबर रखा है और हमने कहा है कि बिकॉज 4 पाई इंटू एम अपॉन 2 पाई आर टी रेज टू पावर 3 by 2 इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट एंड दैट कांट बी इक्वल टू 0.
एक चीज ध्यान दें, ये जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, लेकिन ये जो वैल्यू है इसमें एक तो आपके पास मास, दिस इज द मोलिकुलर मास ऑफ द गैस, दिस विल हैव डेफिनेटली हैव सम वैल्यू, R gas constant that is having a fixed value, T at a particular temperature that will also be having a particular value, pi 2, and all these are having some definite value, and definitely these are not equal to 0. So this factor is not equal to 0, so the remaining factor we have put equal to 0. So we differentiate this. Now say differentiation of U into V. तो हम क्या करेंगे, एक बार u का डिफरेंशिएशन v को कांस्टेंट रख लें, फिर v का डिफरेंशिएशन u को कांस्टेंट रख लें। तो पहले हमने c स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने एज सच रख लिया, e रेज़ टू पावर माइनस mc स्क्वायर बाई 2rt, और c स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है दैट विल बी 2c। उसके बाद फिर हमने c स्क्वायर को एज सच रख लिया, और ये जो फर्स्ट टर्म थी इसका डिफरेंशिएशन किया, तो e रेज़ टू पावर माइनस mc स्क्वायर बाई 2rt into d by dc of minus mc square by 2rt, all this should be equal to 0, और e raised to power minus mc square by 2rt into 2c जस्ट हमने एच सच रखा, into c square into e raised to power minus mc square by 2rt, यहाँ तक भी हमने वही रखा। और अब जो इसका डिफरेंशिएशन किया, इसमें फिर से ये m अपॉन 2rt, दिस इज कांस्टेंट, ये हमने एच सच यहाँ पे रख लिया, और सी स्क्वायर जो था उसका डिफरेंशिएशन आपके पास 2c आ गया। जस्ट अब हम इसको रीअरेंज करके थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएंगे, तो e रेज़ टू पावर माइनस mc स्क्वायर बाई 2rt इंटू सी, यहाँ से 2 कॉमन और यहाँ से 2 कॉमन वो हमने कैंसिल कर दिया, तो ये तो बच गया आपके पास e रेज़ टू पावर माइनस mc स्क्वायर बाई 2rt इंटू सी, माइनस ये आपके पास सी स्क्वायर था और ये सी 2 कैंसिल हो चुका है, तो सी क्यूब हो गया, इंटू एम अपॉन 2 पाई आर टी, माइनस साइन के साथ ये रह गया, और आपके पास ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2rt इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम ये जो पार्ट है ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2rt, ये यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये जब ई और c साथ में, तो c इंटू ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2rt, ये सारा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच जाएगा 1, और यहाँ से ये जो है c इंटू एम अपॉन c इंटू ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2rt, ये चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ c स्क्वायर इंटू एम अपॉन 2rt, दिस विल बी इक्वल टू 0। नाउ हम बहुत बड़ी सी इक्वेशन को लेके चले थे, काफी छोटा एक्सप्रेशन बच गया है, और अब हम कह रहे हैं फॉर दिस इक्वेशन टू होल्ड गुड देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। मैं इसको 3 टर्म में कंसीडर कर रहा हूं, एक c से a इंटू दिस सेकेंड टर्म b एंड दिस टर्म c, a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू 0। सो अगेन दैट विल बी पॉसिबल ओनली either c is equal to 0, sorry, a is equal to 0, or b is equal to 0, or c is equal to 0. So there are 3 possibilities. First, either c is equal to 0, ये 0 यहाँ आएगा। Second, e raised to power minus mc square by 2rt is equal to 0. पहले ये जो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, either c is equal to 0 और e raised to power minus mc square by 2rt is equal to 0. These will be possible, which is so when c is equal to infinity. And third possibility is 1 minus mc square by 2rt is equal to 0. There are 3 possibilities. तो इसमें ये कह रहा है कि ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है कि e रेज टू पावर माइनस mc स्क्वायर बाई 2rt 0 के बराबर कब होगा, जब c इन्फिनिटी हो। और हमने इन्फिनिटी की कंडीशन नहीं निकालनी, हमने निकालनी है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। तो अब उसके लिए कह रहा है दी फर्स्ट 2 कंडीशंस, दैट इज c इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई मॉलिक्यूल होगा ही नहीं कि जिसकी वेलोसिटी 0, और एक c इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बोथ दीज कॉरस्पॉन्ड्स टू मिनिमा। हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज में हमने देखा था कि देयर इज
the fraction of molecules having very low velocity and very high velocity are very low. So fraction of molecules having velocity equal to 0, that will be 0 or minimum. Similarly, infinity is the maximum velocity. So maximum velocity will be again possessed by minimum number of molecules. So these two conditions, condition first and condition second, that is c is equal to 0 or c is equal to infinity, they corresponds to minima. Now corresponding, we want to calculate the value corresponding to maxima. So for that purpose, because there are no molecules having velocity 0 or infinity, therefore from third possibility we have, third possibility is 1 minus mc square by 2 RT is equal to 0. So that gives you mc square by 2 RT is equal to 1. और हम c निकालना चाहेंगे तो c इधर रह जाएगा और ये 2 RT by m. Therefore c will be equal to, पहले ये c square आएगा, then c will be equal to 2 RT by m under root. This was the required expression for most probable velocity using Maxwell distribution of velocities equation. Similarly, expression for average velocity. Average velocity के लिए हमने कहा था कि expression can be represented as c और c के ऊपर हम लगा देते हैं bar for average. c bar or v will be equal to 8 RT by pi m. This is the direct result. Now we have to obtain this result using Maxwell distribution law. So again, derivation from Maxwell distribution law, the average velocity can be calculated by assuming that the molecules can have velocities from 0 to infinity. Because for average, the velocity can be minimum as well as the velocity can be maximum. So minimum is 0 and maximum is infinity. In these two limits, we have to calculate the average velocity. Therefore, calculating the total value of the velocity by integration between the limit 0 to infinity, पहले हम total velocity calculate कर लेंगे, उसमें limit हम लेंगे 0 to infinity, और जो वो total velocity आ जाएगी, that will be divided by total number of molecules, and that total number of molecules usually we represent that by n. So dividing the total velocity by total number of molecules, we will get the average velocity. So for that purpose, we can write it as c bar or v will be equal to, this is the limit for integration, 0 that is the minimum, infinity that is the maximum, c dnc by n. C is the velocity and dnc are these very small number of molecules and n is the total number of molecules. Substituting the value of dnc from the equation, here we will use again Maxwell distribution of velocity equation directly, that dnc by n is equal to 4 pi. We are using this equation over and again. So you just remember this, that dnc by n is equal to 4 pi m upon 2 pi RT raised to power 3 by 2 into e raised to power minus mc square by 2 RT into c square into dc. We have to put the value of this dnc by n as a whole we can put, or dnc. So in that case we get c bar or v will be equal to 1 upon n, यहाँ से हमने ये constant value रहेगी, और dnc that will be n इस तरफ आ जाएगा तब, तो 4 पाई इंटू n और c ऑलरेडी है तो c इंटू n इंटू 4 पाई, बाकी एज सच m अपॉन 2 पाई RT रेज टू पावर 3 by 2 इंटू e रेज टू पावर माइनस mc स्क्वायर by 2 RT इंटू c स्क्वायर into dc. Now again this 4 pi into m upon 2 pi RT raised to power 3 by 2 is a constant. We take it out of this integration symbol and then integrating the rest between 0 to infinity. n भी यहाँ से बाहर आएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बाकी जो है ये बच जाएगा आपके पास e raised to power minus mc square by 2 RT into c क्यूब, c स्क्वायर यहाँ था, c ये था, c क्यूब इंटू dc. और अब जो ये इंटीग्रेशन है आपके पास 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस mc स्क्वायर बाई 2 RT इंटू c क्यूब dc, इसको हम अलग से ले लेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेंगे.
और फिर इस इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे. So on solving the integral involved above, we have 0 to infinity e raised to power minus mc square by 2rt into c cube into dc. This will be equal to 0 to infinity e raised to power minus ac square. a हमने रख दिया m upon 2 rt is equal to a. तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर, ये अच्छा सी क्यूब इंटू डी सी. नाउ दिस इज ए स्टैंडर्ड integration, and this standard integration value, this 0 to infinity e raised to power minus ac square into c cube into dc, that will be equal to 1 upon 2 a square. We are using again here the direct result. अब वापस फिर से a हमने रखा था यहाँ पे a is equal to m upon 2 rt. तो यहाँ जो ये a स्क्वायर था 1 अपॉन 2 इंटू एम अपॉन 2 आर टी, और क्योंकि ये ए की वैल्यू है उसका स्क्वायर हो जाएगा तो रेज टू पावर 2, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 आर टी बाई एम रेज टू पावर 2. तो ये जो वैल्यू आई है ये उस इंटीग्रल की आई है. अब उसमें पूरी वैल्यू हम लेंगे कि एवरेज वेलोसिटी सी बार और वी विल बी इक्वल टू, ये हमने छोड़ दिया था आपके पास वहाँ पे कि 4 पाई इंटू एम अपॉन 2 पाई आर टी रेज टू पावर 3/2 जो कांस्टेंट था उसको हमने एच रख दिया था, और जो इंटीग्रेशन था वो सोल्व होकर आपके पास ये आया 1 अपॉन 2 इंटू 2 आर टी बाई एम रेज टू पावर 2, वो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी. अब यहाँ पे 4 पाई, ये आपके पास पाई था पाई रेज टू पावर 3/2, इसको अलग से रख लिया, तो यहाँ बचेगा एम अपॉन 2 आर टी रेज टू पावर 3/2, और ये उसके उलट है 2 आर टी बाई एम रेज टू पावर 2. तो पाई अपॉन पाई रेज टू पावर 3/2, तो ये तो बच जाएगा पाई रेज टू पावर 1/2. ये 2 से 4 कट जाएगा तो 2 अपॉन पाई रेज टू पावर 1/2, और ये जो आपके पास था अगर इसको हम करें 2 आर टी बाई एम तो ये रेज टू पावर माइनस 3/2 हो जाएगा, और ये रेज टू पावर 2 है, तो उसमें से 2 माइनस 3/2 आपके पास 1/2 बच जाएगा, तो 2 आर टी बाई एम रेज टू पावर 1/2. दिस विल गिव्स यू सिंपल 8 आर टी बाई पाई एम. पाई को भी हमने इसमें अब स्क्वायर रूट में ले लिया, और ये 2 अंदर आएगा स्क्वायर रूट में तो 4 होके आ जाएगा, तो 8 आर टी बाई पाई एम रेज टू पावर 1/2. तो फाइनली वी विल गेट दैट एवरेज वेलोसिटी C bar or V will be equal to 8 RT by pi m under root. This was again the required result. Similarly, next result for root mean square velocity. Again, root mean square velocity is given by 3 RT by m under root. And as we have discussed, the definition of root mean square velocity, that was the square root of mean of squares of velocities. जैसे मैंने इनके डेरिवेशंस के स्टार्ट में कहा था कि हम सिर्फ इनकी जस्ट जो डेफिनेशन है उसी को मैथमेटिकल टूल बनाएंगे और उसी को हम यूज करेंगे, और उससे हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज करते हुए हम वो एक्सप्रेशन है वो ड्राइव करेंगे. सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैन बी गिवन एज दिस C square. C square means the square of the velocities, and then this is for mean, so mean of squares, and then raised to power 1/2 means square root of mean of squares, या उसको हम u से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो जैसे एवरेज वेलोसिटी में अगर आप ध्यान देंगे हमने लिया था 0 to infinity c into dnc by n. यहाँ 2 चेंजेज हुए हैं, 0 to infinity एच सच है, डी एन सी बाई एन बी एच सच है, सी की जगह तो यहाँ आ गया सी स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा है कि वो वहाँ सी एक तरह से कह एवरेज वेलोसिटी हम ले रहे थे, यहाँ सी जो है वेलोसिटीज के स्क्वायर का एवरेज हम लेंगे, और उसके बाद यहाँ ये जो अंदर कैलकुलेट होके आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अंदर जो कैलकुलेट होके आएगा ये तो आ जाएगा जो डिफरेंट वेलोसिटीज है उनका स्क्वायर का मीन, और उस मीन का फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे
that will become root mean square. Again, for simplification, we first calculate c square, not under root. मीन ऑफ स्क्वायर्स पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद फाइनली जस्ट एक स्टेप में बार बार हमें स्क्वायर रूट ना लिखना पड़े, तो फाइनली एक बार हम यू स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद लास्ट स्टेप में उसका अंडर रूट ले लेंगे, यू विल गेट यू. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओवर एंड अगेन रेज टू पावर 1/2 और स्क्वायर रूट, वी just first calculate u square. So substituting the value of dnc, again Maxwell distribution of velocity equation, dnc by n is equal to 4 pi m upon 2 pi rt raised to power 3/2 into e raised to power minus mc square by 2 rt into c square into dc. We get root mean square of root mean square velocity means u square will be equal to, हमने अभी दिया था 1 upon n, ये कांस्टेंट रहेगा, 0 to infinity c स्क्वायर इंटू n, ये n यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद dnc की वैल्यू 4 पाई m अपॉन 2 पाई rt रेज टू पावर 3/2 इंटू e रेज टू पावर माइनस mc स्क्वायर बाई 2 rt इंटू c स्क्वायर इंटू dc. टू सोल्व द इंटीग्रल इन्वॉल्व इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इंटीग्रल है, वी पुट mc स्क्वायर बाई 2 rt इज इक्वल टू x स्क्वायर. Therefore, this C4 अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये x4 हो जाएगा, यहाँ C4 रह जाएगा, और m अपॉन 2RT इस तरफ आएगा तो 2RT बाई m स्क्वायर के साथ. तो therefore C4, ये आपके पास जो है ये वैल्यू है e रेज टू पावर माइनस mc स्क्वायर बाई 2RT की जगह तो आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस x स्क्वायर. C4 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 2RT बाई एम स्क्वायर इंटू x4. आल्सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये जो DC और कैलकुलेट हमने करना है, तो इसका अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा C विल बी इक्वल टू x इंटू 2RT बाई एम रेज टू पावर 1/2. और अब इस C का डिफ्रेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट C, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dc विल बी इक्वल टू 2RT बाई एम रेज टू पावर 1/2 इंटू dx. तो अब आपके पास इस dc की वैल्यू भी हो जाएगी, आपके पास C4 की वैल्यू हो जाएगी, आपके पास ये जो e रेज टू पावर माइनस mc स्क्वायर बाई 2RT है इसकी वैल्यू हो जाएगी. पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट में ये इंटीग्रल जो है 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस mc स्क्वायर बाई 2RT इंटू C4 इंटू dc. अब हम इसकी जगह तो रख देंगे 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x स्क्वायर, वो तो आ गया इसकी जगह. C4 की जगह 2RT बाई एम रेज टू पावर 2 इंटू x4, और dc की जगह 2RT बाई एम रेज टू पावर 1/2 इंटू dx. हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये 2RT बाई एम रेज टू पावर 2 है, ये कांस्टेंट है, 2RT बाई एम रेज टू पावर 1/2 है, ये कांस्टेंट है, तो ये 2 और हाफ जुड़ के रेज टू पावर 5/2 हो जाएगा. ये तो आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर कि 2RT बाई एम रेज टू पावर 5/2, 0 टू इन्फिनिटी, और बाकी रह जाएगा क्या, x4 इंटू e रेज टू पावर माइनस x स्क्वायर इंटू dx. Now this integral 0 to infinity x4 into e raised to power minus x square into dx from table of definite integrals, इसका डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख रहे हैं, that will be equal to 3/8 pi raised to power 1/2. तो ये इंटीग्रल जो है इसका डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखेंगे, that will be obtained from definite integral table, that is 3/8 pi raised to power 1/2. तो आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है कि 0 टू इन्फिनिटी रेज टू पावर माइनस mc स्क्वायर बाई 2RT इंटू C4 इंटू dc, दैट विल बी इक्वल टू 2RT बाई m रेज टू पावर 5/2, और इसकी जगह आ जाएगा 3/8 पाई रेज टू पावर 1/2.
Substituting this value in equation first here this is equation first. So putting the solved integral in this equation, we will get this 0 to infinity e raised to power minus mc square by 2rt into c4 into dc 0 to infinity this. You will get 2rt by m raised to power 5 by 2 into 0 to infinity x4 this, and this integral from definite integral table you will get 2rt by m raised to power 5 by 2 into 3 by 8 pi raised to power 1 by 2. Substituting this value in equation first, we get this u square or c square average will be equal to 4 pi into m upon 2 pi rt raised to power 3 by 2 into ये जो इंटीग्रल वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट ये उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो 2rt by m raised to power 5 by 2 into 3 by 8 pi raised to power 1 by 2. और इसको अब अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू विल गेट 4 पाई, ये जो पाई था यहाँ पे रेज टू पावर 3 by 2 था, इसको हमने अलग से कर लिया m अपॉन 2rt रेज टू पावर 3 by 2, और ये आपके पास है वो जो पहले था आपके पास 2rt by m रेज टू पावर माइनस 5 by 2, हमने उसको इन्वर्स कर दिया तो दैट विल बिकम m अपॉन 2rt रेज टू पावर माइनस 5 by 2, और ये ऐसा रहेगा 3 by 8 पाई रेज टू पावर 1 by 2. अब यहाँ पे ये आपके पास m रेज टू पावर m अपॉन 2rt बाई रेज टू पावर 3 by 2 है, ये रेज टू पावर माइनस 5 by 2 है, तो ये 2.5 है, ये 1.5 है, तो ये तो आपके पास बच जाएगा m अपॉन 2rt रेज टू पावर माइनस 1. और पाई जो था आपके पास, ये पाई और ये पाई रेज टू पावर 1 by 2, पाई रेज टू पावर 3 by 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो 3 by 2 तो यहाँ से बच जाएगा, तो 3 by 2 इंटू एम अपॉन 2rt रेज टू पावर माइनस 1, और अब इसको इन्वर्स कर देंगे तो 3 by 2 इंटू 2rt बाई एम विल बी इक्वल टू 3rt, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3rt बाई एम. तो मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था कि ये आपके पास u स्क्वायर हमने जस्ट कैलकुलेट कर लिया, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, और उसका अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यू विल गेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू 3rt बाई एम रेज टू पावर 1 by 2 और 3rt बाई एम अंडर रूट. So all these were the derivation for 3 types of molecular velocity: root mean square velocity, average velocity, and most probable velocities. So questions on these different types of molecular velocities can be in 2 ways. एक तो आपके पास सीधा हो सकता है कि डिस्कस और डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटीज एंड ड्राइव रिलेशन बिटवीन देम, या फिर आपके पास इनमें से किसी एक के लिए एक्सप्रेशन आपसे ड्राइव करवा सकते हैं, आइदर फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी यूजिंग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेशन. उसके अलावा इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आमतौर पे पूछते हैं. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूजुअली सिंपल होंगी, उसमें एक 2 चीज़ों का आप ध्यान रखें. एक तो टेम्परेचर, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो तो भी, केल्विन में दे रखा है तो ठीक है, केल्विन में ही रहेगा, अदरवाइज अगर डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर है तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करना ना भूलें, सबसे पहली बात तो ये है. और उसके बाद जो ये रिलेशन है 3, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वो डायरेक्ट आप याद रखें कि एवरेज वेलोसिटी 8rt बाई पाई एम अंडर रूट है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3rt बाई एम अंडर रूट है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2rt बाई एम अंडर रूट है. तो वो आप डायरेक्ट याद रखें और उन पे बेस्ड बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी. 1-2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ जो सोल्ड एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं चाहूँगा कि डिस्कस कर लूँ. उसके अलावा और जो सोल्ड एग्जाम्पल होंगे वो भी, और जो अनसोल्ड एग्जाम्पल आपके लिए एक्सरसाइज के लिए दे रखे हैं, प्रॉब्लम्स जो दे रखी हैं, वो आपका होमवर्क होगा आज का. तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटी व्हेन टेम्परेचर अलोन इज गिवन.
तो बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तीनों कैलकुलेट करवा रखी है। किसकी? ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एट 427 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो ये 427 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लें। तो इसके सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे आप? कैलकुलेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, टेम्परेचर गिवन है दैट इज 427 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, यू विल ऐड 273, यू विल गेट 700 केल्विन। एम मोलिकुलर मास, जो गैस का नाम देते हैं उससे उसका मोलिकुलर मास आप कैलकुलेट करेंगे 64 ग्राम पर मोल। और आर जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है दैट इज, एक चीज ध्यान दें, यहां यूनिट्स का ध्यान कर लें, ये जब आपके पास ग्राम पर मोल में अगर रख रखा है तो ये वैल्यू भी अब यहाँ CGS यूनिट में है। आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻⁷ आर्ग्स पर डिग्री पर मोल। अदरवाइज फिर अगर इसको केजी में रखते हैं तो फिर ये SI यूनिट में आएगा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन this relation, again this is a usual relation, root mean square velocity 3RT by m under root 3r 8.314 into 10⁻⁷ t 700 and this is the molecular mass। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे and it comes out to be equal to this much centimeter per second। उसके बाद एक बार जब आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं तो एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप, जैसे अब ये एवरेज वेलोसिटी है, उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से रिलेशन यूज कर लें, हमने पहले यूज किया है वो। तो जस्ट ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है उससे हम मल्टीप्लाई कर दें 0.921 से, यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी। और इसी तरह से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए जो रिलेशन है वो है कि एवरेज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 0.816 ऑफ u means root mean square velocity you have calculated already, so multiply again this, you will get the most probable velocity। अदरवाइज आप इनके लिए भी सीधा रिलेशन यूज कर सकते हैं कि अल्फा के लिए हम पुट करें कि 2RT by m अंडर रूट, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान पड़ेगी। और उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी के लिए आप पुट कर सकते थे 8RT by m अंडर रूट, तो तब भी वही वैल्यू RT m की हम वैल्यू रख के फिर कैलकुलेट करते। तो ज़्यादातर ये रिलेशन आप यूज़ कर लेंगे अल्फा v और u का, तो आपको आसान पड़ेगा। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट है कैलकुलेट द टेम्परेचर। अब ये कैलकुलेट करवा रहा है एट विच द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल हैव एन एवरेज स्पीड ऑफ दिस। तो एवरेज वेलोसिटी दे दी है, वही है कि जो कुछ पैरामीटर्स होंगे उनमें से एक पैरामीटर को छोड़ के वो बाकी पैरामीटर्स आपको दे देंगे, और एक जो पैरामीटर बचा हुआ होगा वो आपसे कैलकुलेट करवा लेंगे। तो ये कुछ एक दो सोल्ड एग्जाम्पल हैं, और उसके बाद कुछ अनसोल्ड एग्जाम्पल आपके पास प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज। और अदरवाइज एक और चीज़ है कि जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये न्यूमेरिकल करें, वट एवर बुक यू आर फॉलोइंग उनके कम से कम जो सोल्ड एग्जाम्पल हैं वो आप ज़रूर कर लें। तो ये एक टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स थे। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटीज एट NTP और STP, तो वो आपके पास कुछ सोल्ड एग्जाम्पल्स हैं, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस है। तो ये सारा कुछ आपका एक तरह से कह लो कि आपका होमवर्क हो जाएगा। तीसरी तरह की भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने दे रखी है कि कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटीज व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर अदर देन NTP। पहले जो था वो NTP और STP पे कैलकुलेशंस थी, अब टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो NTP कंडीशन से ना होके उससे अलग दे रखी है, तो भी आप उनको, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे हम देखें, कहता है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एट 18 डिग्री सेल्सियस एंड 800 mm प्रेशर। तो STP कंडीशंस तो होंगी ये 1 एटमॉस्फेयर मीन्स 760 mm, वेलोसिटी V1 will be equal to, volume will be equal to
2400 centimeter cube. T1 will be this temperature should be 273 Kelvin. ये करेक्शन कर लेना. और गिवन कंडीशन है P2 800 mm है और T2 जो है दैट इज 291 Kelvin. तो अप्लाइंग गैस इक्वेशन P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2, we will calculate the volume of the gas under these conditions of temperature and pressure. That comes out to be equal to this. And then using the relation, जैसे हम कहते हैं कि 3RT by m under root, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए, तो RT PV is equal to RT for 1 mole of a gas. तो RT की जगह आपके पास क्या आ जाएगा PV. तो ये चीज देखना कि भाई आपके पास 3RT by m वाला फार्मूला ही हम हमेशा यूज करें, ये जरूरी नहीं है. गिवन कंडीशंस के बेस पे हम ये 3PV by m अंडर रूट फार्मूला यूज कर लेंगे और फिर ये इसमें हम जो डिफरेंट वैल्यूज है वो पुट कर देंगे, आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी. इसी तरह से नेक्स्ट टाइप की भी आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक दो सोल्व्ड एग्जांपल हैं और उसके बाद अनसोल्व्ड एग्जांपल हैं. सो you have to go through all these solved example as well as unsolved example. This is for your homework. Next type of calculation for molecular velocities.